A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So as you know that in the last class we have started the new chapter for microeconomics, that is consumer equilibrium. So in the last class we have already discussed about the introductory part as well as the what is the meaning of the consumer. Next we have discussed the what is utility. So utility is the simply the want, is the power of the any commodity. Okay, so it is called the utility, and what are the different features of the utility and the kind of the utility. So utility is of two types, that is cardinal utility and the ordinal utility. So cardinal utility, which is expressed in the numeric terms or the numbers in the quantitative, whereas when we talk about the qualitative, so ordinal, so it is in the qualitative sum, so in which we have given the ranks or the order, right? So this is your ordinal and the cardinal. Next we have started the utility, in which we have discussed the total utility and the marginal utility. So what are the different, what is the total utility and what is the marginal utility? Okay, so we have discussed in the last class, as well as we have also done the several of the numerical questions related to how to calculate total utility when the marginal utility is given, and how to calculate marginal utility when the total utility is given. So we have discussed several numeric questions in the last class. So in today's class we are going to start with the basically we deal with the that is relationship between the total and total utility and the marginal utility. So what is the relation between the total utility and marginal utility? So first of all we will take one example and we draw one diagram related to the total utility and the marginal utility, and then we discuss the relation between both of them. Next topic that we will discuss in this chapter, that will be law of diminishing marginal utility. So what is the law of diminishing marginal utility? So we will discuss it after this topic. So let's get started. So here we will take one example related to this, that is consumption or the quantity total utility of the X commodity. So here we are taking the quantity of the X commodity, right? And total utility of the X commodity and the marginal utility of the X commodity, right? So 1, 2, 3, 4 and 5. So consumer are consuming 5 units of the commodity, and so what will be the total utility and the marginal utility of the that consumer? So total utility is 100, 190, 270, 340 and 400. So it is your total utility of the any individual or the consumer is given. So here we will calculate the marginal utility. How? So first will be the 100, because before this we are not consuming any of the commodity. Next one is 190 minus 100, that is 90. 270 minus 190, that is 80. Then 340 minus 270, that is 70, and the 400 minus 340, that is 60. So here we can calculate the value of the marginal utility of the X commodity from the total utility of the X commodity. So when we calculate the total marginal utility, so marginal utility is equal to total utility of the N commodity, total utility of the TUN minus TUN minus 1. मतलब previous one से हम लोग क्या करेंगे, present one को previous one से क्या करेंगे, subtract कर देंगे, so that we get the value of the marginal utility. ठीक है? और total utility अगर हमें calculate करना है तो it is the summation of the marginal utility. So if you have the marginal utility and the quantity is given, so how we calculate the total utility? So we can sum all the total utility, marginal utility to calculate the total utility. So first would be 100, then 100 plus 90, 190 plus 80, 270 plus 70
and 340 plus 60. So we get the value of the total utility, right? So yeah, next what we will do, we draw one diagram related to this. Okay, so here will be the quantity and the TU and MU, total utility of the X commodity and the marginal utility of the X commodity. So अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इस वैल्यूज को पुट करेंगे. So यहाँ पे लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4 and 5. यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं. So values are big, so we have to gap between the 50-50, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 and the 400, राइट. सो ये हो गया आपका. अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे. सो क्या होगा, क्वांटिटी 1 पे हम टीयू कितना कंज्यूम कर रहे हैं, 1 पे 100. वन पे 100, 2 पे 190, 2 पे 190, 3 पे 270, 270, 4 पे 340, 340, 5 पे 400. सो अगर हम लोग ये सारे पॉइंट्स को मर्ज कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, सो वी गेट दी टोटल यूटिलिटी कर्व. सो फ्री हैंड से हम इसको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे. सो इट विल बी योर टोटल यूटिलिटी. ठीक है, मिल गया ना. हमें कुछ नहीं करना था, जो भी पॉइंट्स गिवन थे उनको बस प्लॉट करना था. नेक्स्ट हमें क्या बनाना है, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी. तो इसका भी फर्स्ट पे क्या है, 100 है, तो यही सेम पॉइंट हो जाएगा. देन 2 पे 90, 2 पे 90. ओके, सो दिस वन. 3 पे 80, 3 पे 80, 4 पे 70, 4 पे 70 एंड 5 पे 60. ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं. सो दिस इज योर marginal utility curve, marginal utility curve, that is MU, and this is total utility curve. ठीक है, total utility curve and the marginal utility curve. ठीक है, सो ये बन गया. अगर हम लोग के पास ये टेबल था, इस टेबल को हम लोगों ने क्या किया, वैल्यूज को पुट किया, टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी. उसको पुट करने के बाद वी गेट द वैल्यू, वी गेट द टू कर्व्स. सो दिस वन इज टोटल यूटिलिटी एंड द सेकेंड वन इज मार्जिनल यूटिलिटी. गॉट इट? So the next one is, that is, we have to discuss about the relation between both of them. ठीक है, so relation देखते हैं हम लोग. relation कह रहा है, relation between TU and MU is explained with the help of table. तो ठीक है, अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सेकेंड टेबल लेंगे. ये तो हो गया, ये रिलेशन बता दिया. सेकेंड टेबल लेंगे जिसके हेल्प से हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है, सो जस्ट इसको हम लोग रिमूव करते हैं और सेकेंड टेबल लेते हैं, उसके हेल्प से पढ़ेंगे.
ठीक है। ज़ीरो, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। सो 0 पे 0 ही हो जाएगा, क्योंकि कोई भी 0 क्वांटिटी यूज करेंगे हम लोग, कुछ यूज करेंगे, कुछ नहीं यूज करेंगे 0, तो हमको उससे यूटिलिटी भी क्या मिलेगी, 0 ही मिलेगी। जब हम कुछ कंज्यूम ही नहीं करें तो हमें उस कोई भी कमोडिटी में कितनी पावर होगी कि जो हम लोग को सेटिस्फाई करे नीड्स। नेक्स्ट हो गया आपका 0, 8, सॉरी दैट इज 8, 14, 18, 20, 20 एंड 18। तो ये पहला हो गया, पहला सेकेंड 8, देन 14 माइनस 8 दैट इज 6, 18 minus 14 that is 4, 20 minus 18 that is 2, 20 minus 20 that is 0 and 18 minus 20 that is minus 2, ठीक है। सो ये आपका क्या हो गया, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या काम है, नेक्स्ट हमें इसे डायग्राम पे प्लॉट करना है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आपको 3 पार्ट में इसको डिवाइड करना है। सबसे पहले इसका एक टेबल होगा जो हमने ड्रॉ कर लिया, नेक्स्ट इसका डायग्राम होगा, फिर इसका एक रिलेशन होगा, ठीक है। तो इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सो हियर विल बी दी क्वांटिटी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ पे वैल्यूज कितनी ले रखी है, हम लोग इसके गैप को 4, 8 कर देते हैं या 18 तक है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। और यहाँ पे क्या है, -2 है, तो माइनस आपका क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है। सो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे उसमें किए थे ना लास्ट वाले में, फिर सेम इसका भी ऐसे ही करेंगे। जैसे 0 पे है आपका 0, तो कोई मतलब नहीं है, देन 1 पे 8, 2 पे 14, 3 पे 18, 4 पे 20, 5 पे 20 एंड 6 पे 18 अगेन, ठीक है। सो अगेन वी ज्वाइन दी ऑल दी पॉइंट्स, सो इट इज स्टार्ट फ्रॉम दी origin. So it will be your total utility of the X commodity, right? नेक्स्ट हमें क्या है, MU ड्रॉ करना है, तो 0 पे आपका 0 हो जाएगा, नेक्स्ट 1 पे 8, तो यहीं पे सेम पॉइंट, 1 पे 8, देन 2 पे 6, 2 पे 6, 3 पे 4, 3 पे 4, 4 पे 2, 4 पे 2, 5 पे आपका क्या है, 5 पे देखिए, लुक एट 5 पे 0 एंड 6 पे -2, -2, ठीक है। ये भी यहीं से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से, एंड देन यहां से हम लोग इसको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द एक्स कमोडिटी, ठीक है। सो देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है आपका, आपके पास
क्वांटिटी दे रखी थी, टोटल यूटिलिटी दे रखा था और मार्जिनल यूटिलिटी दे रखा था। अगर हमारे पास टोटल यूटिलिटी है तो वी कैन फाइंड आउट द मार्जिनल यूटिलिटी एज वेल, एंड द मार्जिनल यूटिलिटी अगर हमारे पास है तो हम लोग उसका टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो टोटल यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी सिंपली मीन्स द बॉन्ड सैटिस्फाइंग पावर ऑफ द एनी कमोडिटी। ठीक है, कोई भी कमोडिटी है उसकी कितनी पावर है जो भी किसी भी नीड्स को, किसी भी ह्यूमन बीइंग की नीड्स को फुलफिल कर दे, उसको बोलते हैं यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मीन्स कि जितनी भी कमोडिटी हमने कंज्यूम की है, 1 कमोडिटी 2 कमोडिटी, उस कमोडिटी को कंज्यूम करने पे हमको कितना ज्यादा, पूरा कितना सेटिस्फेक्शन मिला है, उसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी होता है मतलब अगर हम लोग ने फर्स्ट यूनिट पे फर्स्ट क्वांटिटी कंज्यूम की तो हमें टोटल यूटिलिटी मिली 8, सेकेंड यूनिट कुछ कंज्यूम करेंगे तो हमें उससे या तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन, अगर हमें कुछ ज्यादा सेटिस्फेक्शन या हमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो फर्स्ट और सेकेंड यूनिट को कंज्यूम करने में कितना चेंजेस आया, कितना ज्यादा हमारे चेंजेस आए कंजप्शन में, दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल यूटिलिटी। तो हर एक यूनिट पे अगर एडिशनल यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं तो कितना ज्यादा हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वही बताता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, सो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था? नेक्स्ट स्टेप था दैट इज वी हैव टू प्लॉट दीज वैल्यू ऑन दी डायग्राम। हमें ये सारी वैल्यूज को डायग्राम पे प्लॉट करना था। व्हाट इट, देन हम लोगों ने क्या किया? 0 पे 0 तो उससे कोई मतलब नहीं है, ये टोटल यूटिलिटी ऑफ द एक्स कमोडिटी बन गया। सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने प्लॉट करके बना दिए। सेम मार्जिनल यूटिलिटी का भी सारे पॉइंट्स रख के हम लोग बना देंगे, फिर हम लोग ज्वाइन कर देंगे और आपको ऐसा कुछ कर्व मिल जाएगा। इंक्रीज करते हैं, फिर कांस्टेंट, फिर डिक्रीज। अभी हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे और ये डाउनवर्ड होते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट है दैट इज रिलेशन बिटवीन दी, ये हो गया आपका दैट इज टेबल। सो आई कैन राइट डाउन दैट इज टेबल, this is diagram and this is relation between TU and MU। ठीक है, किसके बीच का रिलेशन है? टोटल यूटिलिटी और दी मार्जिनल यूटिलिटी के बीच का डिफरेंस है, सॉरी रिलेशन है, नॉट अ डिफरेंस। ठीक है, तो ये क्या है? रिलेशन बिटवीन दी टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी। तो पहला है दैट इज एज ओके, इसमें कह रहा है एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी आर कंज्यूम, जैसे ही हम लोग ज्यादा से ज्यादा कुछ कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, सो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट टेंड्स टू डिमिनिश। ठीक है, जैसे ही हम लोग कुछ कमोडिटी का यूनिट को इंक्रीज करते हैं तो जो भी मार्जिनल यूटिलिटी होती है, जैसे मैंने एग्जांपल आप लोग को दिया था, इफ वी आर कंज्यूमिंग दी कंटिन्यूअसली अ बर्गर, हम लोग एक बर्गर कंज्यूम किए, सेकेंड बर्गर खाए, थर्ड बर्गर खाए, फोर्थ बर्गर खाए, तो जो सेटिस्फेक्शन हमें वो फर्स्ट बर्गर देगा वो सेकेंड यूनिट ऑफ द बर्गर हमें कभी नहीं देगा, थर्ड यूनिट हमें कभी नहीं देगा, फोर्थ यूनिट हमें कभी नहीं देगा। तो जो भी यूटिलिटी डिक्लाइन हो रही है, जब हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हैं, वो जो चेंज हो रहा है, फर्स्ट यूनिट पे हमें कुछ कंजप्शन मिला, सेकेंड यूनिट पे हमें कुछ यूटिलिटी मिली, तो जो भी हम फर्स्ट और सेकेंड यूनिट को कंज्यूम करने में हमें जो भी सेटिस्फेक्शन में चेंजेस मिला है, उसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। तो जब भी हम लोग कोई भी सक्सेसिव यूनिट्स को, कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे, तो जो भी हमें उससे मार्जिनल यूटिलिटी मिलनी है, जो भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो क्या होता जाएगा? डिमिनिश होता जा रहा है। क्योंकि मैंने एग्जांपल दिया ना बर्गर का, अभी अगर हम लोग बर्गर कंटिन्यूअसली कंज्यूम कर रहे हैं, एक कंज्यूम करें, हमें कुछ सेटिस्फेक्शन मिला, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन, फिर सेकेंड अगर हम लोग कंज्यूम करेंगे तो उससे कम सेटिस्फेक्शन, थर्ड उससे कम, ये कम होता जाएगा और एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा पॉइंट भी आ जाएगा कि हम लोग चाहे जितना भी कंज्यूम कर ले, हमें जीरो, कोई भी सेटिस्फेक्शन, कोई भी यूटिलिटी, हमें से कोई भी कमोडिटी में, उस बर्गर में इतनी पावर नहीं है कि जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। और फिर कभी कभी ये भी हो जाता है कि जो भी हमारी यूटिलिटी मिल रही है वो निगेटिव में भी हो जाती है, तो वो आपका देखिए माइनस में भी हो जा रहा है। सो दिस इज योर टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी यही है कि एज
रिलेशन अगर हम लोग पढ़ेंगे, एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम, ज्यादा से ज्यादा यूनिट जो है कमोडिटी की कंज्यूम होगी, सो मार्जिनल यूटिलिटी जो भी हमें डिराइव्ड हो रहा है, हर एक जो भी सक्सेसिव यूनिट्स है, तो वो क्या होती जाएगी, डिक्लाइन करती जाएगी, और इट में बिकम जीरो और निगेटिव, और ये जीरो भी हो सकती है और निगेटिव भी हो जाती है, ठीक है। सो पहला लाइन लिखते हैं, एज more and more units of a commodity is consumed, or are consumed, not is, are consumed, marginal utility derived from each successive units tends to diminish, वो क्या हो जाती है, diminish हो जाती है, ठीक है। So I think, is it visible to you all? As more and more units of a commodity are consumed, so marginal utility derived from each successive unit means next वाली जो भी successive इसकी unit है, tends to diminish। देखिए आपका क्या है, ये बढ़ता जा रहा है क्वांटिटी और ये mu diminish करता जा रहा है, ठीक है। सो फिर कह रहा है as long as mu is positive, tu increasing, ठीक है। फर्स्ट वन हम लोग देखेंगे एज टीयू इंक्रीजिंग, जैसे ही आपका क्या देखें आप टीयू इंक्रीज हो रहा है, टीयू इज इंक्रीजिंग, मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, ठीक है। जब when TU is increasing, आप यहां पे देखो with the till the third unit 8, 14, 18, 1, 2, 3, इस 3 यूनिट तक आप देखो जो TU है, टोटल यूटिलिटी है, वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, 8, 14 एंड 18, ठीक है, यहां तक, दैट इज 318 यूनिट तक, यहां तक TU आप देखो इस एरिया तक, इस एरिया तक TU क्या है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो MU आपको मार्जिनल यूटिलिटी क्या दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। नेक्स्ट है व्हेन TU इज, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, MU बिकम्स 0, ठीक है। अब ये कौन सी लाइन आ गई, नहीं कि अभी हम लोग देख रहे थे पॉजिटिव था, अब यहाँ पे 0 कहां से आ गया, तो 0 आने का मतलब यही है कि आप देखो जैसे ही TU, जिस यूनिट पे TU क्या हो रहा है, मैक्सिमम और कांस्टेंट हो रहा है। अब देखिए TU मैक्सिमम और कांस्टेंट कहां पे हो रहा है, ध्यान से देखिए आपको दिखेगा कि एक यूनिट, 2 यूनिट पे आपको दिखेगा TU क्या है, दोनों वैल्यू सेम है, जस्ट रिकॉग्नाइज इट। कहां पे दे रखा है, यस 3 यूनिट तक तो हम लोगों ने देखा था कि 8, 14, 18, 3 यूनिट तक जो आपका TU है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बट एट दी 4th एंड 5th यूनिट, 5th और 4th यूनिट पे देखिए TU क्या आपका हो रहा है, मैक्सिमम हो गया और कांस्टेंट भी हो गया। मैक्सिमम इसलिए क्योंकि 8, 14, 18 क्या है, इनसे ज्यादा मैक्सिमम कौन सा हो गया, TU हो गया है, और कांस्टेंट भी हो गया। कांस्टेंट कैसे हो गया, दैट मीन्स 4th और 5th दोनों ही यूनिट पे TU क्या हो रहा है, TU आपका कांस्टेंट हो गया, दैट इज 20। तो कह रहा है कि जैसे ही आपका TU टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम और कांस्टेंट हो जाएगा, जैसे ही टोटल यूटिलिटी क्या हो जाता है, 4th और 5th यूनिट पे मैक्सिमम एंड कांस्टेंट हो जा रहा है, मैक्सिमम है 20 और कांस्टेंट भी है, 4th और 5th यूनिट पे दोनों ही यूनिट पे सेम है, कांस्टेंट है। तो वैसे ही आप देखिए MU को देखिए,
एमयू तो शुरू में फॉल कर रहा था, बट एमयू फिर क्या हो जा रहा है, इट बिकम्स 0 हो जा रहा है ना, तभी तो इस 5th पॉइंट पे देखिए, 5th पॉइंट पे एमयू इज 0, यहां पे एमयू 0 हो जा रहा है। ये फर्स्ट है, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। ठीक है, तो एमयू जो है आपका, जहां पे टीयू क्या है, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट है। देखिए इस दोनों यूनिट पे टीयू इज 20 एंड 20, और वहां पे एमयू मार्जिनल यूटिलिटी 5 यूनिट पे आप देखो क्या हो जा रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी 5 पे हो जा रहा है, दैट इज 0। वहां पे एमयू क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। देन लास्ट वन इज व्हेन TU total utility starts falling, total utility क्या हो जा रहा है, फॉल करना स्टार्ट हो जा रहा है। सो MU becomes, marginal utility becomes नेगेटिव। मार्जिनल यूटिलिटी यहां पे आप देखो क्या हो जा रहा है, इट बिकम्स दी नेगेटिव। So this is how the relationship between TU and total utility and the marginal utility is explained. इसी के थ्रू क्या होता है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी एक्सप्लेन होता है। क्या हो रहा है फिर से देख लीजिए, एकदम सिंपल सा है, इट्स नॉट टू मच कॉम्प्लिकेटेड। और लास्ट हम लोग ये भी लिख सकते हैं, दैट इज TU is equal to summation of marginal utility and MU is equal to TUN minus 1। ठीक है, सो MU किसके इक्वल है, MU is equal to TUN minus 1, राइट। ओके, फिर एक बार देखते हैं इसको पूरा प्रॉपर, फिर से अच्छे से पढ़ते हैं, रिकैप्चुलेट करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या देखा, यहाँ पे हम लोगों ने देखा रिलेशन देख रहे थे टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी का, कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी कैसे ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक क्वांटिटी वाला देखा, क्वांटिटी रखी हुई थी, क्वांटिटी थी जो क्वांटिटी कंज्यूम हो रही है, और साथ में टोटल यूटिलिटी और द मार्जिनल यूटिलिटी रखा था। ठीक है, सो टोटल यूटिलिटी आपकी दे रखी है। अगर टोटल यूटिलिटी दे रखी तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी, हम उसे मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब आपके पास क्या दे रखा होगा, अगर आपके पास क्वेश्चन में मार्जिनल यूटिलिटी दे रखा है तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द टोटल यूटिलिटी। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक दिया रहेगा तो हम लोग सेकेंड वाला इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटी थी, टोटल यूटिलिटी थी, टोटल यूटिलिटी इज 8, 14, 18, 20, 20, 18। अब इससे हम लोग को अगर मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करना है तो कैसे देखेंगे, अगर 0 यूनिट है, 0 पे हम लोग क्या करेंगे, 0 पे कंजप्शन भी हमारा, टोटल यूटिलिटी भी कंजप्शन। अगर हम लोग कुछ भी कंजप्शन कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है, हम कुछ कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो हमारी यूटिलिटी भी क्या हो जाएगी, वो 0 ही होगी। बिकॉज अगर कुछ हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो हमें कंजप्शन पे हमें यूटिलिटी, उसमें सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा, तो वो 0 हो जाएगा। उसके बाद जब फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट एंड 5th यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो TU क्या हो रहा है आपका 8, 14, 18, 20, 20 एंड 18, एंड MU इज 8, 6, 4, 0 एंड -2। ठीक है, ये आ गया हमारा नेक्स्ट स्टेप। ये था आपका टेबल। सेकेंड वन इज दैट इज डायग्राम। डायग्राम के थ्रू हम लोग इसको एक्सप्लेन कर रहे थे। इसमें क्या देखा था, दैट इज कि आपका इसको हम लोगों ने सारी वैल्यूज को प्लॉट कर दिया। ठीक है, TU की 0, 0, 1, 8, 2 पे 14, 3 पे 18, 4 पे 20, 5 पे 20, 6 पे 18, ये ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट हम लोगों ने मार्जिनल यूटिलिटी कर दिया। अब इसके साथ रिलेशन देखते हैं TU एंड MU का। क्या रिलेशन है TU एंड MU का, एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी आर कंज्यूम, जैसे ही मोर एंड मोर यूनिट कमोडिटी कंज्यूम हो रही है, MU जो है वो हर एक सक्सेसिव यूनिट, एक एक्स्ट्रा जो भी नेक्स्ट यूनिट आ रहा है उस पर क्या हो रहा है, MU मार्जिनल यूटिलिटी देखिए फॉल करता जा रहा है, 8, 6, 4, 2, 0, -2। ठीक है, फिर कह रहा है कि व्हेन द TU इज इंक्रीजिंग, जब आपका TU क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा तो MU इज पॉजिटिव। TU यहाँ पे देखिए टिल द थर्ड यूनिट,
टिल द थर्ड यूनिट टीयू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, पॉजिटिव है। फिर कह रहा है कि when the TU is maximum and constant, TU फोर्थ और फिफ्थ यूनिट पे क्या है, मैक्सिमम भी है और कांस्टेंट भी है, तो MU क्या हो जा रहा है, वो 0 हो जा रहा है। नेक्स्ट कह रहा है when the TU starts falling, आप देखो यहाँ पे TU 20, इसके बाद 20 के बाद फॉल करने लग रहा है, 18 हो गया, तो वहां पे क्या हो रहा है, MU becomes the नेगेटिव। MU देखिए आपका -2 हो गया। So it shows the relation between the total utility and the marginal utility. So in the next class we will continue the next topic, that is law of diminishing marginal utility. Okay, thank you.